नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। हैदराबाद में अभी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मीट चल रहा है और वहां देश भर के डॉक्टर पहुंचे हुए हैं। क्या परेशानी हो रही है कोरोना को लेकर के और कैसे उससे निदान पाया जाए, इस सब पर बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। मैं अनुज से आग्रह कर रहा हूं कि जो भी लोग जुड़ गए हैं वो स्क्रीन पे जुड़ जाएं। हेलो डॉक्टर माया जुड़ गई हैं। हेलो डॉक्टर माया। हाय डॉक्टर माया, कैसे हैं हेलो आप? यस एकदम यस, मस्त। एकदम मस्त। डॉक्टर सुजन भी जुड़ रही हैं। Work with the nutrition part. Nutrition is one thing for purified vegetable analysis. We asked है प्रोफेसर भास्कर। प्रोफेसर भास्कर वो यूएचओ के मीट के पोजीशन पर हैं। So I'll do one thing here. Okay, Ashutosh, welcome Ashutosh ji. वेलकम And, वेलकम। this is being worked by some people. I can always tell you this UHO, what we have done here, it is a handiwork of one person. You are going to meet is Professor Bhaskar Raman. He is going to join me right now here. And Dr. Veena Raghav, both of them has taken pains to come from Mumbai and Bangalore here. And there are other stalwarts, Dr. Amitabh Banerjee, he is alive with us now. Dr. Arvind Kushwaha, and the bigger, we call it as a Sarthi, is Ashutosh Pathak ji, and he has done a great kind of work in synergy in bringing all the people together. And here exactly, I would like to stop here and like to take some questions and all that later on. I felt there were some case studies I just wanted to show. Can you just slowly this one? Good. Slide number, you can go to, yeah. Please go down. Yeah, next. So we were talking about these two prevailing narratives, and we were the first people who thought the prevailing narrative is not very, somehow the thought-provoking people who are really, it's not totally foolproof. So we have next axis. Yeah. So according to this alternative narrative, we no problem. So according to this, okay, alternative to this one. Next slide, please. I just wanted to show you some of the crux cases and all that where we try to work on that. Next, please. Immune system, we are talking about immune and adaptive immunity, and somehow I always believe the old timers, particularly what I have a great regard. I do a lot of geriatric practice, and people have 60, 70 plus. I have a great regard, and somehow they have got a good innate immunity rather than this adaptive immunity. Next slide, please. Next slide. So I was talking about this Navy and base. Next slide. This is what I was trying to talk about: mucosal immunity and systemic immune system. If we start with mucosal immune system and go with this one, that is a great kind of stuff. And this is next slide, please. I see a lot of next slide. Next slide. Raman. So Raman, you can take some next slide, please. Here I just want to show some of the things which I felt it is necessary at this hour. The kind of which has been somebody with his active person dies instantly, giving a show is particularly not a next slide. I just want to go further. Next. So what we were trying to work on that, the kind of guys who has done work, Vanden Bosch, who was a leading proponent of alternate narrative, he disagrees to this particular view of
pandemic of the unvaccinated. Next slide, please. Next slide. Come on. Next. I'll just try to. So we, as a group, I had a case. Here. Go back. The Association of Cerebral Vascular Thrombosis. I do my active practice. I have a case who has got a superior sagittal sinus thrombosis, and we have invited a mother who lost her daughter to this sagittal sinus thrombosis. She is expected anytime now. And next slide. So these are all the cases which have been next year. So there was a case study. This is the data I have got with me now. 1,024 athletes had cardiac arrest and serious issues, and out of that, 666 people died after COVID shot. And I have all the data with them. I can give all the list of the people who died actually. Mostly footballers were the more affected ones. Can you go down, Raman? Can you go down? Ramanji? Scroll. So it is definitely not normal for so many young athletes to suffer from cardiac arrest. We have read in medicine, people used to have cross-country runners running for miles and all that. They used to have something called ventricular fibrillation because of dehydration and all that. But this numbers, really, it was an eye-opener actually. And you cannot have anything like that unless you have something which has created your thrombogenicity and all that in a big way. Raman, can you just go down? I think I'll take 2 or 3 slides more. Slightly. These are the cases which we felt. Next slide, Raman. I just wanted to stop with one more case here. Can you go down? Okay. So the thing what we were looking for is basically there is a sudden spurt in cases, and sudden spurt in cases of autoimmune disease, sudden spurt in cases of cardiac issues, neurological issues. People are having something like thrombosis, hemorrhage, and all that, and we are not able to understand what is it. I want to tell you, as a radiologist, we have the capacity. We have something like cardiac MRI, we do it, and with that we can pick up myocarditis or pericarditis, and we can tell that this is because of the vaccine. We have the technology with us, and we want people who are having some health issues and all that to reach out to the doctors, tell them, or at least go for a follow-up at least. Because what happens is that it is really, it's not able, we are not able to digest why this singer KK dies all of a sudden. He's not able to reach to that place. And I have another case study. Can you just scroll down? I will end with this particular stuff. 55-year-old male patient is my family friend, and he gets into a sudden kind of ACS kind of problem in the early morning. He's a jogger, he is a vegetarian, he is non-smoker, he's a very active and agile person, and he gets into some ACS, he has a cardiac pain and all that, shifted to the hospital. There was a ST elevations from V1 to V6, and immediately angiography was performed. Angiography showed 100% block in the LCX. It happened on 1st of June, sir. Yeah. So later on, primary angioplasty was done, and there was a thrombus which was there, and it was taken out. Hats off to the doctors who have done that kind of work. So this particular stuff, what I mean to say is, very few lucky people can get that primary angioplasty. Get that. You have to reach to the hospital at the right time, and when all the coronary arteries are normal, what is that which has made a thrombus inside the artery? There has to be something. So this is what we are. Next slide, please.
Next slide. So this is the patient is doing well now, but somewhere we felt yes, he had 3 months back he took a Covishield, and there were cases of optic neuropathy also were described. We were following 2 cases of optic neuropathy, sir, after post jab, and it is being proved on this studies also. Next slide. There was a case of hearing loss, which was this one. I think this is what exactly I wanted. Next slide, Bhaskar. This cardiovascular and hematological events post COVID-19. There's a systemic review which was done, and all I am trying to present is the peer-reviewed journal studies. And what they showed was vaccine at the core. See, this is how we can always learn from past mistakes what has been done. Next slide. Yeah, so I would like to talk, not talk about these problems with COVID PCR test and COVID data collection today. I would like Raman Bhaskarji to come up and talk about that. Yeah, like to take questions. Anything can be taken later also. Thank you. Raman, please. It would be good if you're not speaking to put your controls on mute. हैदराबाद की माइक को मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हैदराबाद में अभी ऑल इंडिया डॉक्टर्स मीट जो हो रहा है यूएचओ का, उसमें डॉक्टर प्रवीण सक्सेना केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस के बारे में बताया कि कैसे या डॉक्टर सक्सेना, यस आई एम लिसनिंग यू, यस Okay. It is absolutely right, Dr. Saxena. Okay, yes. I'd like to invite Raman Bhaskar. And before that, Veena Raghav, if she can come and share the dais with us. Yeah, please. He is ready. Dilo? Yeah. I think it's an audible now. Can you send me the Zoom link? You need to send it to Nilesh Oja and Vital Oja. I'll do. आप उनको ऑफ कीजिए जरा सा Send माइक it को। directly. You have their number. वो आ रहे हैं शायद माइक पे। It is coming on this desk. Yes. आ गए। Dr. Bhaskar is going to speak something. Yeah. On कर दीजिए। I'll get started. Okay. I'll just point out a few things going back to when this all started. So if you go back to March 2020, there was an announcement made by Dr. Tedros, who's the director of World Health Organization. Mobile absent, it absent mic. Absent. Okay. Mute. Okay, fine. Fine. Please. We're going to get the echo again. Okay. You can always. Okay. Now you do it. Okay. So the announcement by Dr. Tedros on 3rd March 2020 was that they say we need to set the audio video first before starting. Otherwise, it's going to be a mess. It's okay. You can continue. People are listening. I'm not able to continue if this keeps happening. Huh? So, I'm just setting, please. Professor Bhaskar, we are receiving your voice and video perfectly. So you please go ahead. just hold on. Deepali ma'am. Hello. See, there some multiple live is going on. Hello. No.
It was perfect and Dr. Saxena is just entering into the. ha. What is happening? Continue. You convey to her? Yeah. Huh? I'll just send it. You have her number? Yeah. Okay, so this is a brief history of what happened from the beginning. So as I was saying, Dr. Tedros, who is the director of WHO, came out with this announcement. He gave a press conference on 3rd March 2020. What was that? Laptop or mic? Oh. Okay. Okay, so the the gist of the press conference was that the mortality rate he announced of COVID-19 was 3.4%. A specific wording was globally about 3.4% of the reported COVID-19 cases have died. In the very next sentence, he compares, by comparison, seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected. So this statement is accurate. The difference is that the 3.4% mentioned is the case fatality rate, which is the ratio of people who have died with respect to the number of detected cases. And it is well known that the seasonal influenza, the infection fatality rate, which is the percentage of people who die as a ratio of the number of people infected, not the hospitalized cases, is about 0.1%. So the media ran with this comparison of 3.4% versus 0.1%. So it was projected as if COVID was more than 30 times more deadly compared to what people are used to. So this was the picture which was presented by this very likely deliberate comparison, side-by-side comparison of the case fatality rate of COVID with the infection fatality rate of influenza. So let me show you this picture. So this picture should give you an idea of the comparison. The case fatality rate is the number of deaths divided by the clinical cases. Clinical cases which reach hospital most likely. Infection fatality rate, whereas प्रकाश जी आप अपना माइक ब्रेक कीजिए, म्यूट कर लीजिए. The number of infections, most of which are subclinical, are not even detected. So this side-by-side comparison was a very flawed approach to the entire thing. So let me show you another graph. So this graph shows you the various numbers which have been put out since the beginning of that time. The first bar shown here is the infection fatality rate of influenza, which is 0.1%, around 0.1% known to be, which is what people have been used to since the ages. The next bar is the case fatality rate of COVID, which was projected to be 3.4%. This was in the WHO announcement. What happened was that not only that, Lancet, which is one of the leading journals, came out in July 2020 saying that even the 3.4% is an underestimate. The
what they called as mortality rate. They didn't clarify whether it was case fatality rate or infection fatality rate. The Lancet paper called the mortality rate to be about 5.6%, and in fact claimed that in places outside of China, it is as high as 15%. So you see the comparison. What people are used to is 0.1%. What Lancet is saying is the mortality rate, which is a completely false comparison, is 15.2%. So 150 times more deadly compared to what people are used to. This was the picture which was painted, and it was a completely false picture. Even as early as April 2020, studies came out. There was a famous Santa Clara study by John Ioannidis. He came out saying that, look, most of the infections are subclinical, and the measured infection fatality rate at that time in Santa Clara County was only 0.17%, 20 times lesser than what was claimed by WHO, and in the same range as what people are used to. Surely 0.17% is more than 0.1%. It is more deadly than flu, but it is in the same range. It is not 30 times, it is not 150 times more deadly. Later studies, the median IFR, again by Ioannidis, this was actually in the World Health Organization bulletin itself. He published in October 2020. He came out with the number of 0.27%. And interestingly, in the same paper, he mentions that for under 70-year-olds, which is most of the population, India, the life expectancy is 69 years. So for under 70, he came out with a number of 0.05%, which is half that of flu. And my own analysis of the Mumbai data has shown that for under 50 years old, it is 0.03%, much less than seasonal influenza. And this is, the best data we have in India. Mumbai is supposed to be one of the best data collectors among the various places in India. So what I'm telling is, this entire thing which has been made out to be a huge, as a once-in-a-century pandemic, hoo-ha, is all a myth. It's not that the disease is not there, it is there. And it is more deadly than what we are used to. However, the comparisons are far more nuanced, and there has been no reason for stopping the world for 2 years. I think let's keep that. I'll just show one. एक मेरे फ्रेंड है वो ज्वाइन हुआ है, डोंट वरी. अच्छा, ओके. Okay, please. So it was basically all the statistics and all that we were never viewing actually. We just thought these are the things which are projected. We thought it is the 1 in 6 person is going to get affected, and it was all yeah, please. On this, that thing has gone again. Okay, I'll just read out the question. So why has this kind of panic been created? So that you can put 2 and 2 together by answering this question. So the question is, I have gone through the Pfizer's children's trial, the document which was presented towards the end of October last year for FDA approval. In that, the trial conducted by Pfizer, the number of kids in the vaccine group was 1,518, and the number of kids in the control group was 750. I would like you to guess as to how many children were saved from COVID-19 hospitalization in the vaccine group compared to the control group. And the options are nearly 100%,
about 75%, about 50%, about 25%, or none, 0. Okay, so let me read the question again. In the Pfizer's children's trial, vaccine group had 1518 kids, control group had 750. What percentage of children were saved from hospitalization, COVID-19 hospitalization? That was the basis of the vaccine approval for children in the US. Okay, so can you guess the number? Yeah, so the options are near 100, near 50, near 75, near 25, and 0. Anyone like to take a guess? Nearly 50%. In the media, you hear, no, the efficacy in saving hospitalization is near 100%. So why not near 100%? Okay, your guess is 0. So you can go check the paper. The answer is 0. Okay, because there was no hospitalization in either the vaccine group or the control group. This was true not only in the age 5 to 11 age group, it is also true in the age 12 to 25 age group. No hospitalization. In fact, not even no severe COVID. So their efficacy is 0 by 0, which is mathematically indeterminate. Or if you look at absolute risk reduction, it is 0 minus 0, which is 0. This is the product which is being injected into millions of children in the US. You can see how absurd it is. They have concocted the story of huge danger and selling these injections for children. Okay, so I am done with this. Yeah. How many people or what is the percentage of mortality because of the medication, treatment, or the hospital procedures or is there any data? There are specific analysis of what happened in the New York first wave. There are documented cases of that ventilator fiasco happened, which killed a lot of people. So that there are some numbers. I don't remember them. Likewise, there are also studies which have shown that remdesivir has a overall negative effect. So that also was strongly pushed both in the US and in India during the second wave. So how many fell victim to this unnecessary negative effect medication which was sold in the black for lakhs? We don't know. Dr. Veena? We have Dr. Veena Raghav, all the way. She has come from Bangalore. She used to manage all ICU and all that. She's an intensivist, anesthetist. And I'd like to acknowledge the presence of Dr. Ram Satpalkar sir and madam. Thanks for coming, sir. Thanks, ma'am. Dr. Veena has come all the way from Bangalore, and now she is mostly into something like holistic medicine, and she talks about nutritional medicine a lot. Dr. Veena, welcome to Hyderabad, please. Thank you, sir. Good evening, everybody, and namaskar to all the elderly audience who's available here. And thank you, Dr. Praveen, for arranging this excellent meeting over here. And to tell you about myself, I have done my MBBS way back in 1983 from Madras Medical College. And after that, I came to Bangalore and did my anesthesia. And I've been working in the ICU and anesthesia for the past 40 years totally.
And so we've been through the first wave, and even through the second wave, I was still working, and continuously we were in the ICU. And what happened is I was refusing to take the vaccine. I was refusing to wear a mask, and I've never worn a PPE kit. So I was practically dismissed from the ICU. And I didn't want to work in a place where everything was sparse. So I also walked out. I said thank you, and I walked out. And in the meantime, for the past 20 years, we are also working on clinical nutrition. And with clinical nutrition, as an allopath, I take care of all the blood tests and everything that has to be done as a clinical physician. But when it comes to the treatment, we prescribe more of a lifestyle change, exercise, holistic approach, nutrition, and we try to get people out of their medication. So to give you a simple example, we all know that people have hypertension, and in our textbooks, it is written that 85% of the hypertension is idiopathic. Idiopathic means cause not known. So when the cause is not known, it's up to the doctor to treat. So either you give a beta blocker, or you give an ACE inhibitor, or you give whatever drug you want. You give a diuretic, so it's up to you. But actual cause is the arteries have hardened up as you age, and there's a lot of calcium deposit and things like that. So simple stuff like giving adequate amount of magnesium in the nutrition can bring the BP to normalcy. And you don't need a antihypertensive medication for that. So we've been doing that. And in the meantime, this whole gimmick about COVID came through, and we saw through it from the very beginning. And we could understand that our innate immunity is about 13 times stronger than the immunity that the vaccine can give you. If it does, the vaccine actually doesn't give you any immunity, because in the beginning they said all those who take vaccine won't get infected. After that they said, no, you will get infected, but it will be mild. And then they said, no, you will get infection, it may be severe, but you won't die. Then, or maybe they said you won't go to ICU. And the last thing they say, yeah, you will go to ICU, but we can still save you. So, that's how the whole nonsense about this vaccine is going on. And we people, we've been fighting and fighting and fighting right through. Today in the train, when I was coming also, I spoke to all my co-passengers and told them that this whole thing is like this, and I'm going to attend a meeting where we are all, against the vaccine, and we're all focused on building our own immunity strong so that we get our own protection from the body. So they were all getting scared. I'm sure they didn't sleep the whole night because everybody was vaccinated over there. Okay. And to tell you, sir, I have some proof over here of some cases. And before that, I want to talk to you about two or three points regarding this. The first point is, you cannot have a mechanical approach for a medical treatment. You cannot have a mechanic, like you're not on an assembly line, where all the parts are the same to produce the same product. Like you have a car manufacturing, and you have all the same products getting in, getting fitted, and coming out. Human beings are not like that. Human beings have different ways of treating themselves. I'm sure most of us have our own grandmother's, formulae that we still use and get better. Some people have their own family doctors whom they trust a lot and they go to them. Some people believe in naturopathy, Ayurveda, Unani. We have to respect everything and not put everybody in the same bracket of vaccine. That is number one. Second thing, even if you try to put it, it's like you're having a circular orifice and you're trying to put a square through it. And each square is a different size because each human being is a different size. Some squares may just fall through, escape, and nothing will happen. Whereas some squares, when you have to put it through, you have to shave all the ends and try to squeeze it through. So when it comes out, obviously it's not a square. That's what happens when you forcefully give vaccine to people who don't deserve to take it. And when they come out, they are handicapped.
So we have seen cases where there is Guillain-Barré syndrome, there is neurological deficit, there is increase in epilepsy. We've seen patients where there is optical atrophy, sudden cataract. Cataract takes minimum 6 to 7 months for it to mature, ripen, and actually take off your eyesight. Today you take the injection and tomorrow you have an opaque cataract. This was unheard of. But it has happened after the vaccine, and that too to a pulmonologist doctor who was in Bangalore. She did all her medical examination, she did her tests, she took the vaccine, and next day she had a blank eye where she couldn't see anything, and then the doctor said, it's cataract. And she was asking, how can cataract develop so suddenly? There was no answer for that. We have seen people who have optic atrophy. We have seen people with iridocyclitis. We've seen people with, sudden rise in incidences of TB, where the mantle comes positive, 35 in duration on the arm when you give a mantle test. Then you've seen increase in all the cancer cases, cancers that are remissions have propped up again. New cases of cancer, we could see 1 case in a month. Now we are seeing 2 cases in a week. It has become that severe. And the third thing what we want to talk to you about is, see, when you do a sero survey, and when you understand that 75, 79, 84% of the population already has antibodies, why do you want to give them more and more vaccine? How much of antibodies are you going to produce? And the best thing is, if people die within 14 days of having taken the vaccine, they say that it is not vaccination death. Because according to them, it takes 14 days for the antibodies to develop. So they say you've taken the vaccine, but the antibodies haven't formed. So in that gap of 14 days, if you have died, it is because of something else, not of the vaccine. This is their, game and agenda. And the third thing what I want to talk to you is, when we have a public health decision being made, you see, public health will be giving the same tablet to the complete population. That is one type of public health. Second public health is, see to it that everybody gets the treatment that they require. That is also public health. So now what do you want to do? You want to just give one single treatment for the complete population, or you want to allow each person to take whatever is their due? And I have a few graphs over here which I would want to show to you guys. And since they've put on the light, this is one graph that you can see. Can you see there's only one single red line over here? People ask me, ma'am, why are you so against the COVID vaccine? Don't you say that other vaccines can also produce side effects? Don't they produce death? Yes. So we have graphs from 1990. Including all the vaccinations that are available in the world globally, and all the graphs of death is at rock bottom. And when it comes to the year 2020, 2021, the graph is over here. The spike is right on top. So this is a total eye-opener, and this is from CDC. I haven't made this. This is from CDC, and they believe more in CDC actually, because they think CDC, WHO is God. So I should not question them. I should just go on following whatever they tell me. So that is what is happening. Here we have a guy. He's sitting here. His name is Joel R. Kalman. We have a COVID app in India. All of you know we have a COVID app. You have to register yourself. Whether you're vaxxed or unvaxxed, it has a recording. This guy has made the VSafe app in the US. VSafe, that is the vaccine safety app. And he went on Twitter and he said, I've taken the first dose. And he went on telling people, all of you register under the VSafe app. And so that we can have a record of the American population that has taken the vaccine, first dose, second dose, when it is due and everything. And by the time he took his second dose, he died. He's out of the game now, totally. And the VSafe app, now Mr. Biden says that is the most, what does he say?
Mr. Biden says it is the most perfectly safe vaccine. That is what he says. And we have lot of things. We have a French, we have a German guy called Vanden Bosch. He's written a proper article saying vaccinating kids is not dumb. It is insane. It is insane because children have very good immunity, and we're already through 2.5 years in the COVID scenario. When it came the first time, it should have hit the children. It didn't hit. The first wave came, the second wave came, the Omicron wave came, children escaped. And today, because your vaccine is ready, you're saying that the children will get infected and I have to give the 15 to 18 and 12 to 15 and 7 to 12, and you go on with that narrative. Why are people not questioning? Why do you want to take everything down like a like a pill that is going to give you everything? Why are you not asking questions? Ask, and you shall receive the answers, definitely. Don't just go ahead with see what is happening. How do you think KK died? His post-mortem shows lot of clots in all his arteries. Puneet Rajkumar, who was a Kannada actor, he went while exercising. Nobody did a post-mortem. They just closed it. People are just youngsters, like Dr. Praveen was saying, 1,200 athletes have died. How many post-mortems have done? All of us know if there's a sudden death within 24 hours, it's a medical legal case. Post-mortem has to be done and cause of death has to be confirmed. But they don't do it. They just close it. And when the side effects happen, it's the corporate hospitals are getting more patients, so they just treat the patients and they go on treating and they don't want to link it to the vaccine. Nobody wants to link the side effects that have happened to the vaccine that they have given. So this is a huge thing. I think we as a enlightened population, we have to go around, educate people, tell them to ask questions, read between the lines, go and do your own Googling and searching. You Google for all sorts of silly things. Why don't you Google when there's a matter of life and death in your hands? Google, sorry, find out what is happening and go through the whole thing. And I would advise people to take care of their further generation, build your own immunity, don't fall for these gimmicks. These vaccines and the diseases will keep coming as long as the money flows. And you should answer one question. Who has benefited from this whole pandemic? Is it you or is it somebody else? If it is somebody else, then you have helped him do it. If you have benefited, then I don't have anything to say. Thank you. All the best. Yeah, we have some speakers out there, and we have Justice Narayana with us now. Nilesh Ojha ji, I would request you, Nilesh Ojha, sir, we know you for a long time, and somewhere, if you can just throw some light on what are the things, because we would like to involve not just medical community and other sectors. We are very hopeful that this particular legal thing is going to be a important thing, because we have tried enough politicians. We spoke to so many people. They just talk and they from one year it goes from the other year. And Nilesh Ojha ji, it's all yours, sir. वापस आते हैं। नीलेश जी अभी मुंबई से UHO मीट को ब्रीफ करेंगे। मीनवाइल हम So the success is more depending upon the research. मीनवाइल हम हमारे जो पैनलिस्ट हैं अभी उनसे थोड़ी चर्चा कर लें। वापस जाएंगे हैदराबाद। थोड़ी देर के लिए आप ऑडियो म्यूट कीजिए अनुज। डॉक्टर माया, डॉक्टर सूजन, प्रकाश पोहरे जी और बानखेड़े साहब,
हैदराबाद में तो हमारे डॉक्टर्स मिल रहे हैं, वहां जो ऑडिटोरियम में लोग हैं उनको बता रहे हैं, लेकिन हम देश को यह बताना चाहते हैं कि आज अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पे एक रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, और रिपोर्ट है हमारे माननीय, आदरणीय, परम सम्मानित मिलॉर्ड की, दिल्ली हाई कोर्ट के मिलॉर्ड की। दिल्ली हाई कोर्ट के मिलॉर्ड कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे और फ्लाइट में उन्होंने देखा कि कोई सज्जन मास्क नहीं लगा रहे हैं। वो 23 में आ गए, गुस्से में आ गए, और उसके बाद एक पुराने केस में, जो 2021 का केस है, उस केस में उन्होंने डीजीसीए को आदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है ड्यूरिंग द ट्रेवल, तो आप उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दें। इस रिपोर्ट के बाद मेरी प्रशांत भूषण जी से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि इसको अपील करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आपको मालूम होगा डॉक्टर माया, डॉक्टर सूजन और प्रकाश पोहरे जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि किसी को आप वैक्सीन जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उसके पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वापस कर लिया गया और किसी को मास्क लगाना है नहीं लगाना है यह उनका प्रेरोगेटिव है, इंडिविजुअल्स का प्रेरोगेटिव है। इसके लिए कोई एजेंसी उसको बाध्य नहीं कर सकती है, उस पर फाइन नहीं लगा सकती है। बावजूद इसके हमारे जो मिलॉर्ड हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और आपको ताज्जुब होगा कि मैं जब कई बार अभी मुंबई, बेंगलोर, नागपुर, जब भी मैं एयर ट्रेवल कर रहा था तो उसमें बजाबता अनाउंसमेंट होती थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार, और अब मुझे लग रहा है कि इन connivance with private party, this judge has given this order, and I am saying with full conviction and responsibility, मेरे जज साहब, मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने कंटेम्प्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। गिरफ्तार कीजिए मुझे, करिए गिरफ्तार मुझे, मैंने कंटेम्प्ट किया है। आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कोई डेटा नहीं, मास्क से क्या होता है इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट में मास्क को लेकर के कई रिपोर्ट्स पेश किए जा चुके हैं, मुंबई हाई कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि आप फाइन नहीं कर सकते हैं, मुंबई पुलिस को कहा गया कि आप फाइन वापस कीजिए। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज, तब जबकि सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है, उसके बाद भी ये कर रहे हैं। तो डॉक्टर माया, आप क्या कहेंगे? हम चलेंगे कुछ देर में, जैसे हमारी कनेक्टिविटी होगी हम हैदराबाद भी चलेंगे। डॉक्टर माया। देखिए, इसमें न लॉ की जरूरत है, न साइंस की जरूरत है, थोड़ी कॉमन सेंस की जरूरत है, और वो ज्यादातर लोगों में होती नहीं है। कि आप जब प्लेन में बैठते हो उसके पहले पूरे एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होता रहता था कि आप दूरी बनाए रखिए, बैठिए तो दूर बैठिए। जैसे ही आप प्लेन में बैठते हो तो वो रूल गायब हो जाता है कि दूरी का रूल अब समाप्त हो गया है। फिर जैसे आप कुछ खाना खाते हो तो मास्क का रूल समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वो सब टाइम पे कोरोना को मना होती है। और हमारे जज साहब अपने एसी कमरे से, एसी कार से, एसी घर से, एसी ऑफिस और एसी होटल से बाहर गए नहीं होंगे। उनको बोलो जाओ गांव में, कौन सा 2020 के मार्च के लॉकडाउन के दिन से किसी ने, ज्यादातर लोगों ने न मास्क पहना न लॉकडाउन फॉलो किया, तभी हम स्वस्थ हैं। उसी के कारण, लोगों की कॉमन सेंस के कारण उनको पता चलता था कि ये, अरे हमारे देश के पास एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फोन किया है, मेरे पास रुमाल नहीं है। और जिसके पास, मैं क्या रुमाल हो तो मैं रुमाल बांधू ना, कपड़ा मुश्किल से पहन लेते हैं, हमको है कि नहीं हमारी जेब में रुमाल तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा देश। तो
वो लोग मास्क कहाँ पहनेंगे, रुमाल भी नहीं है जिनके पास बांधने के लिए। और उन्हीं लोगों से, उन्हीं झोपड़पट्टियों के कारण जो लोग घूमे हैं बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शंस के बिना, उसी के कारण लोगों में अभी जो डॉक्टर वीना बता रही थी कि 60 to 70% को तो 2 महीने में 4 महीने में इम्यूनिटी आने शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने इनके ये ऐसे अनसाइंटिफिक लॉ हमारी कॉमन सेंस से कभी फॉलो ही नहीं किए। तो इनको आप लॉ को छोड़िए, साइंस को छोड़िए, उनको बोलो थोड़ा कॉमन सेंस फॉलो कीजिए, तो भी आप ऐसे क्या है। नहीं तो क्या लगता है, ये जो हमारे जज साहब हैं मिलॉट, जिन्होंने ये आदेश दे दिया है, और ये सिंगल बेंच जज है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, ये अकेले हैं, उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया है, और उसको बहुत प्रमुखता से अखबारों ने, ये जो बिकी हुई मीडिया है, प्रमुखता से हर अखबारों में उसको जगह मिली है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कोविड बिहेवियर नहीं फॉलो करेंगे, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो आप तो नो फ्लाई लिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा। तो अच्छा, ये कैसा, मैं बता, मिलॉर्ड कहना बंद करो, ये अपने आप को सच्ची में लॉर्ड समझने लगे हैं। बीच में जो आया था ना कि ये मिलॉर्ड कहना बंद करो। अच्छा, इनको भ्रम भी हो गया है कि मुझे मिलॉर्ड क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो ये अपने आप को लॉर्ड समझ के जो दिमाग में आए ऑर्डर दे देते हैं। बोलते थे बंद कार में आप अकेले हो तो भी मास्क पहनो, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट से आया था, अगर आपको दिल्ली हाई कोर्ट से आया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट से आया था, जिसका इनको मतलब साइंस या लॉ कुछ पता नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है। मेरा कहना इतना है कि लॉ और साइंस तो ये नहीं ना ही बोलते हैं। साइंस में तो अब कितने स्टडीज आ गए। ये इतना छोटा सा वायरस आपके मास्क से कहीं भी अंदर घुस जाने वाला है। दूसरी बात ये है कि देखते नहीं है आप, सब पास बैठे हुए खा रहे हो, तब तो मास्क निकल जाता है, तब तो आपको कुछ किसी को नहीं जा रहा है। अभी आपके ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वापस लेने के पहले ये जो सबसे तक चैनल है, तेज चैनल, ये तक चैनल पर बजाबता एक एडवर्टीजमेंट आता था सेवलॉन का, डॉक्टर माया। ये देखिए इनकी बेईमानी। और ये जस्टिस सिंघवी, मैं हैरान हुआ, ये इस प्रकार के जस्टिस हमारे देश में, ये कहां से इन्होंने पढ़ाई की, किसने इनको प्रमोट किया, किसने इनको जज बनाया। ये तक चैनल पे चलता था कि शेवलॉन का अगर आप मास्क लगाएंगे तो इट विल प्रोटेक्ट यू टिल 27 आवर्स, और जो नॉर्मल आप मास्क लगाएंगे तो ये 27 मिनट प्रोटेक्ट करेगा। अब बताइए, ये ब्रॉड डे लाइट में एडवर्टीजमेंट चल रहा है, बताइए, सेवलॉन कंपनी का एडवर्टीजमेंट चल रहा है ये तक चैनल पर। 27 मिनट्स भी गलत है कुछ नहीं वो भी गलत है। अब आप बताइए कि जहां पर इतना बड़ा मेस बना हुआ हो मास्क को लेकर के, सबने कंफर्म किया कि भाई वो मास्क जो, इवन सर्जिकल मास्क जो है N95, वो भी कह रहे हैं कि वो जो डॉक्टर्स के लिए जो आईसीयू में जाते हैं, या जहां जो बहुत प्रोन इलाका है जहां इन्फेक्शन के फैलने का, वहां पर तो आप ठीक है, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं। सबने मान लिया है कि मास्क जो है कहीं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है आपको इन्फेक्शन से, जीरो प्रोटेक्शन है। अच्छा, आप इनको बताइए, इज्जत साहब को, इनको बोलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का। भाई फेटेलिटी रेट तो हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस में सबसे ज्यादा है, टीबी तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शस है, हवा में टीबी घूम रहा है। आपने कभी मास्क पहना क्या टीबी को लेकर के? ये संघवी साहब कहां से पढ़ लिख के आए हैं, हमको तो हैरान है। और इनका रुतबा देखिए, कलकत्ता से आ रहे थे और इनके फ्लाइट में, चूंकि इन्होंने फर्स्ट हैंड इनको मिल गया ना कि किसी ने इनके सामने में अपोज कर दिया, कि ये हिम्मत कैसे हुई उसकी। उनके सामने में जज साहब ट्रेवल कर रहे हैं, उनके सामने में अनमास्क आदमी कैसे दिख जाएगा। आते ही वो आए, बेंच बिठाया, ऑर्डर कर दिया। जोकर जबरदस्त। प्रकाश पोहरे साहब आपके पास आ रहे हैं, डॉक्टर सूजन। प्रकाश पोहरे साहब, जरा आप आइए अब जरा डिबेट में। प्रकाश पोहरे साहब, आपको सुनना चाहती है दुनिया, सुनना चाहती है। प्रकाश जी, आप बहुत बड़े वॉरियर रहे हैं कोरोना के समय में। ये बताइए प्रकाश जी, अभी इन्होंने जिन शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, जोकर है ये निर्णय, जोकर है ये निर्णय, जोकर है। जस्टिस
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये जोकरई किया है कि नहीं किया है? मैं जोकर कह रहा हूं, करो मेरे ऊपर फाइल, चलो ले चलो, मुझे थाना ले चलो, चलो जेल घुसाओ। ये डिसीजन आप कैसे दे सकते हैं? बताइए, आप कैसे दे सकते हैं? आप ये क्या समझ लिया? बनाना रिपब्लिक है क्या? इज इट ए बनाना रिपब्लिक? आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप यह ऑर्डर पास कर देंगे कि जो मास्क का पालन नहीं करेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेगा, आप उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल देंगे। ये डेमोक्रेसी है क्या? है ये राजशाही है क्या? न्याय की ऐसी व्याख्या करेंगे आप? और आप क्या समझ रहे हैं कोई आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा? आप ये लोगों को धमकी देंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और न्याय की अपने तरीके से जो मन में आए वो विवेचना करेंगे। न्याय की ऐसी विवेचना नहीं होने दी जाएगी, और अगर आप इस तरह की विवेचना करेंगे तो बहुत गंभीर सवाल उठाने पड़ेंगे। प्रकाश पोहरे जी, बोलिए। अच्युत जी, मैं ऐसा समझता हूं कि माया जी जो बोल रही है वो वही सही है। इन लोगों को क्या है, ये मिलॉर्ड वगैरह बोलकर हम लोगों ने इनके दिमाग खराब कर दिए हैं, और हम अभी भी अंग्रेजुयत में से बाहर आने, ये मिलॉर्ड वगैरह सारे विषय जो है, ये जो शब्द है, ये सारे अंग्रेजों के जमाने के शब्द है। और जो ये वो जो सिस्टम है, उनको ऊपर बैठाओ, ये करो वो करो, तो ये सारा का सारा अननेसेसरीली इन लोगों का जो रुतबा है या लोगों के ऊपर मेंटली उनको थोड़ा सा डोमिनेंट करने का जो विषय है, वो हिसाब से ये सारा किया। और दुर्दैव की बात ये है कि जैसे कि कल प्रोफेसर शर्मा बता रहे थे कि आजादी तो मिली है हमको अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजियत से आजादी लेने में या फिनेंशियल आजादी लेने में हम लोग अक्षम रहे, या वो हुआ नहीं, उतना समय मिला नहीं है। जिस तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे सारे जो दलित बांधव थे उनको ये तो दिलाया कि हम लोग, ये हमको अगर इंसान मानने को तैयार नहीं है तो चलो हम लोग अभी बुद्धिज्म स्वीकार करके हिंदुइज्म से बाहर निकल जाते। लेकिन हुआ क्या कि 2 महीने के बाद में अनफॉर्चुनेटली बाबा साहब का देहांत हो गया, या उनके साथ में क्या बोलेंगे उसको, घातपात हुआ, या वो अभी वो तो सारी डिस्प्यूटेड विषय है, मैं उनके वो जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या कि सिर्फ हम बुद्धिज्म लेने वाले हैं ऐसा हुआ, लेकिन उनको सिखाया नहीं गया। उसी तरीके से आजादी मिली, लेकिन ये आजादी के हमारे क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, वो हम लोग सीखे नहीं है। जैसे कि बाकी के वो देश की जहां पर कंपल्सरीली लोगों को कुछ साल उनकी जिंदगी के मिलिट्री में गुजारने पड़ते हैं, यानी डिसिप्लिन वे में जीना पड़ता है। तो देखिए वो कंट्री कहाँ के कहाँ निकल गई है, क्योंकि उनको एक डिसिप्लिन लग गई। लेकिन हमें तो बात है ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड्ग बिना धार दे दी हमें आजादी, वो वाला जो गाना है। तो क्या है, हमको ये आजादी जो मिली है ना फोकट में बोलो या इसमें, तो क्या हुआ है कि हमको हमको समझ भी नहीं आया कि हमारी कर्तव्य क्या है। वो हिसाब से लोगों को समझ भी नहीं आया। ये है कि हमारी भी कुछ ड्यूटी फंडामेंटल राइट्स है। तुगलक एरा में नहीं प्रकाश जी, हम लोग ये तुगलक एरा में रह रहे हैं क्या, कि अगर किसी जस्टिस को कोई भी अपने मन में कुछ भी आ जाएगा और वो निर्णय दे देंगे इस तरह का, और फिर बाध्यकारी होगा? ये बताइए कि डावोस में मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद इस तरह के निर्णय आ रहे हैं, और उसके बाद एकाएक मीडिया में प्लांट होना खबर शुरू हो जाता है कि केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में और केरल में, और यहां से राजेश भूषण जो है सो एडवाइजरी जारी करना शुरू कर जाता है। ये कोइंसिडेंस है क्या, या एक रणनीति का हिस्सा है कि डावोस में मीटिंग खत्म हुई, डावोस के दलालों ने मीटिंग खत्म की, यहां एक्टिव हो गया मामला और फिर जुडिशरी उसमें कूद गई, जुडिशरी ने अपना रोल प्ले कर दिया। और वो ये न्यूज को सारे मीडिया ने फ्लैश किया, बाकी कोई न्यूज फ्लैश नहीं करेंगी कि कितने लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन से कितनी तकलीफ हो रही है, कितने ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, इसके बारे में कोई न्यूज नहीं डालेंगे। और ये एक फालतू जज ने फालतू डिसीजन दिया, उसको पूरे के पूरे देर पूरा ऑल ओवर इंडिया सारा का सारा ये सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग करते, हर अखबार वाला इस न्यूज को छापेगा।
तो ये आप जो बोल रहे हैं वही बात है। ये जो डावोस के जो दलाल है, ये सारे लोग इसमें पड़े हैं और इनको दबा दबा के पैसा मिला है। ये बिल्कुल जैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पैसा मिला है, दबा के पैसा मिला है। इस तरीके से जो जस्टिस है, इसको इसने ये फालतू में फोकट में निर्णय नहीं दिया होगा जस्टिस ने। मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली ये बोलने के लिए तैयार हूँ कि ही मस्ट हैव गॉट हिज शेयर। तो इसीलिए इस तरीके से बेहुदा बेवकूफ के जैसे, और वो उसके बाद में भी ये यानी अपने खुद के कोर्ट ने, न्यायपालिका ने क्या जजमेंट्स दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, वो ये सारे के सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वापस लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसके तरफ ये इनको मालूम नहीं होगा, ऐसा आपको लगता है? ये मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। ये सारा का सारा बॉस ये खेल चल रहा है, ये सारा वैक्सीन के लिए, क्योंकि इनके बाद में वैक्सीन पड़े है। वो अदर पूना वाला नलायक हरामी जो है, वो दिन बोल रहा था ना कि हमारे पास में 5 करोड़ क्या 20 करोड़ डोज मेरे पास पड़े, वो वेस्ट हो जाएंगे। तो यानी तेरे तो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो तेरा जहर हम ले लेंगे लोग उनके पास में। इस तरीके से ये सारी बातें चल रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ये दूसरी आजादी का जंग छेड़ने का समय आ गया है, इतना ही मैं समझता हूँ बस। डॉक्टर सुजन, आपको क्या लगता है कि जज साहब ने होशो हवास में निर्णय दिया है, या इस निर्णय के पीछे उनका एक सनकी दिमाग काम कर रहा है, या फिर वो डावोस के दलाल से उनकी मिलीभगत है? डावोस में जो दलालों का गैंग जुटा है उससे उनकी मिलीभगत है, क्योंकि मैं इसे कोइंसिडेंस में नहीं मान रहा हूं। वहां मीटिंग समाप्त होती है और मीडिया में खबरें प्लांट होने लगती है, और कानपुर का जो दलाल प्रोफेसर है, मैथमेटिकल मॉड्यूल तैयार करने वाला, जिसको हमारे आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर रमन भास्कर लगातार काउंटर कर रहे हैं, उनका मॉड्यूल सफल करने के लिए कि 22 जून को 4th वेव आएगा, इधर से कहानी शुरू हो गई। और ये जो राजेश भूषण है, जो हमारा नीलेश ओझा के केस में रेस्पोंडेंट नंबर 4, 5 या 7 है, उनके खिलाफ मुकदमा उन्होंने दर्ज किया हुआ है। रणदीप गुलेरिया, इंक्लूडिंग रणदीप गुलेरिया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी रेस्पोंडेंट नंबर 8 हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। तो ये कॉन्स्पिरेसी, आपको लग रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये फिर से एक्टिव हो रही है? जी हाँ, मैं तो ये बिल्कुल इसमें सीधा देखना चाहूंगी कि ये इनका अपना खुद का निर्णय नहीं है। ये जो आ रहा है बिल्कुल बाहर से आ रहा है। डावोस के बाद उनको सीधे वहां से इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। जब तक कि वहां से इंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं, इन लोगों के पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो खड़े हो जाएं, क्योंकि अब हमारे देश में जनता बहुत कुछ जाग चुकी है, इनको अच्छे से मालूम है। लेकिन वहां पीछे से जब तक देखो हम बिहेवियर में है तो हमें मालूम रहता है, हम इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि एक व्यक्ति एक तरह से बिहेव करता है तो क्यों करता है। यदि कोई व्यक्ति एक पोजीशन में बैठकर एक पर्टिकुलर डिसीजन लेता है तो अपने आप से वो नहीं लेगा जब तक उसको पीछे से कोई सपोर्ट ना मिले। और वो जो सपोर्ट है वो बिल्कुल इंटरनेशनल गैंग की तरफ से मिला हुआ सपोर्ट है, और इन लोग इसी वजह से बिना डर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो जनता है एक बार जाग जाती वही जनार्दन होती है। तो हम जनता को अपना पोजीशन लेना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए, चाहे आप वो कॉम्प्रोमाइज मीडिया करे ना करे, हमें तो करना ही चाहिए। जिस प्रकार से आज UHO साथ में आए हैं, उसी प्रकार से जितने बहुत सारे आज डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, जिनको इन सब का चीज मालूम है, साइंटिफिकली उसको डाल सकते हैं। हमें अपना डेटा लेकर सामने आना चाहिए और इन जज के ऊपर कहते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डालना चाहिए। नहीं, ये इंस्टीट्यूशन को कोलैप्स करवा रहे हैं। ये देखिए, एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को, ये इसके पहले भी जजेस जेल गए हैं, इसके पहले भी जजेस के खिलाफ इंक्वायरी बैठी है। लेकिन सवाल है कि इस तरह के जजेस जो हैं, न्याय व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठवा रहे हैं, तो ये तो अपराध है ना पूरी तरह से। ये तो अपराध है, तो ये कौन बोलेगा? एक देखिए, हमारे जनमानस में एक बना हुआ है, आप एक माइंडसेट जिसको आप कहते हैं, मानस बना हुआ है हमारी आवाम का, कि नहीं, जज साहब ने अगर कुछ बोल दिया तो उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हम, जज तो जज है। अब आप बताइए कि जज साहब अगर इस तरह का कंप्लीटली अनसाइंटिफिक निर्णय दे रहे हैं, कंप्लीटली अनसाइंटिफिक, जिसको कोई वो मजा एक तथ्य से वो कोरोबरेट नहीं कर सकते हैं अपने निर्णय को, उसके बाद भी उनके ऊपर सवाल ना उठाया जाए, उनको जोकर ना कहा जाए, तो क्या कहा जाए बताइए? बिल्कुल, उनको जोकर बोल के जोकर बना देना है उन्हें। इसलिए उसके लिए सबसे बढ़िया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्हीं के विरुद्ध डालने का है,
क्योंकि इन लोग का जो निर्णय है बड़े बड़े पोजीशंस में बैठ के ये गैर जिम्मेदारी तरीके से, इसको कहते हैं गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करना और गैर जिम्मेदाराना निर्णय लेना, जिससे लोगों का जीवन, ये ऐसी छोटी मोटी बात नहीं, लोगों का जीवन खतरे में है। ये लोगों के टीकाकरण की वजह से आज लोग टीका टपक की बीमारी लग गई है, वैक्सीन इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट, वैक्सीन इंड्यूस्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, अचानक से लोग अंधे हो रहे हैं, अचानक से कैंसर डेवलप हो रहा है। ये हम लोगों के पास आ रहे हैं केस, सबूत है इनके। आप डॉक्टर सुजन कल्पना कीजिए कि भुवनेश्वर हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। एक पीआईएल अगर किसी ने डाला कि वैक्सीन के ऊपर जरा एक हमारी प्लीज सुन लीजिए, 2 लाख का फाइन लगा दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। मुंबई हाईकोर्ट कह रहा है फोर्स नहीं कर सकते हैं। मेघालय हाईकोर्ट कह रहा फोर्स नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यही 2021 में सुनने को तैयार नहीं थी। नीलेश ओझा ने चंद्रचूड़ जी को कहा, उन्होंने आरोप लगाया हियरिंग के दौरान कि मिलॉर्ड आप नहीं सुन रहे हैं हमारी बात को। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आरोप लगाइए, हमारा सोल्जर स्ट्रांग एनफ टू बियर योर एलिगेशन। ये उनका निर्णय था और बाद में नागेश्वर राव की पीठ ने निर्णय जो दिया वो हम लोगों के समर्थन में निर्णय आया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ जो आप लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर माया, डॉक्टर माया बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में नहीं सुना, जब इतना सारा एविडेंस आया उसके बाद सुना, तब तक सरकार ने अपना जो काम करना था, एक तरफ आपका मीडिया पूरा लोगों को डरा डरा कर, फिर कॉरपोरेट्स, उन्होंने मतलब बड़े कॉरपोरेट नहीं, छोटी छोटी कंपनियां जो जीआईडीसी में होती है सब, अगर आप वैक्सीन लोगे, फिर हमारे जो लोकल कॉरपोरेशन सरकारी पूरे, आपको ड्राइवर का लाइसेंस सबका कैंसिल हो जाएगा अगर आप टैक्सी नहीं चला सकते, आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आप आपकी रेडी लारी नहीं चला सकते। तो ये सब कर करके उन्होंने अपना काम जब पूरा खत्म कर लिया तब जाके ये निर्णय आया। तो ये हमारी न्याय प्रणाली का कितनी स्लो है कि जब पूरा सर्वनाश हो जाए उसके बाद आप निर्णय लाओ। शुरू में पहले दिन जब सीधी सीधी एक डिमांड थी प्रशांत भूषण जी की, हमको बताओ, उनके डेटा बताओ, तो बोलते हैं फिर लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी आ जाएगी। अगर व्हाट हेजिटेंसी आना जरूरी है कि सच क्या है वह सामने लाना जरूरी है। और फाइनली आप 2022 में वो निर्णय देते हैं कि नहीं, अब कोई वैक्सीन हेजिटेंसी की बात नहीं हम सुनेंगे, अब आपको वैक्सीन एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इवन कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर को भी उन्होंने हिदायत दे दी कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप मैकेनिज्म बहाल कीजिए, पब्लिक डोमेन में लाइए। इतनी देर क्यों करते हैं वो मेरा हाँ, इतनी देर क्यों करते हैं, इतनी देर क्यों करते हैं? दूसरा सवाल ये है कि आपने बोल दिया कि EFI की एक पूरी सिस्टम तैयार करो, उसकी कोई टाइमलाइन दी है कि हमें ये सिस्टम इतने टाइम में कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है कि भाई जो हमने जो प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, तीसरा खत, उसमें डाला है कि पहले दिन से वैक्सीन लगा है तब से लेके आज तक कोई भी वो अपना उसमें कंप्लेंट दर्ज करा सके, ऐसी सिस्टम बनाओ। न तो कोई टाइमलाइन दी है कि इसके इतने समय में उसको तैयार करो, ना ये बताया है कि चलो आप 1 महीना तैयार करो तो 1 महीने के बाद जिनको होगी वो नहीं। आपने जो इतने करोड़ इंजेक्शन दे दिए हैं उनको क्या हुआ है, सबको आप ओपन रखो कि सब उसमें दर्ज कर, कोई गाइडलाइन के बिना ऐसे दे दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत एक तो धीरे चल रही है अपनी न्याय व्यवस्था, वो जानबूझ के है, क्योंकि पहले दिन पता था, बोलते हैं हेजिटेंसी आ जाएगी। अरे हेजिटेंसी बाद में देखो, वो जरूरी है कि नहीं वो तो सुनिए आप। मैंने पर्सनल लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज से 1 साल पहले लिखा है और उसका 4 महीने के बाद मुझे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट मिला था कि हाँ आपका मिला, ठीक है, उसका आगे कुछ नहीं हुआ है। कि हमने प्राइम मिनिस्टर को 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, कि इस देश के, जो डॉक्टर वीना बता रही थी, इस देश के ज्यादातर लोगों में जब एंटीबॉडीज आ गए हैं तब आप किस बात के लिए वैक्सीन दे रहे हो, ये तो बताओ। ये 1 साल पहले की बात है।
अब बच्चों का तो इतना एक्सपोज हो गए, सब ना वो बच्चों को कुछ हो नहीं रहा है, उनकी खुद की कमेटी बोल रही है, डॉक्टर संजय राय बोल रहे हैं, फिर भी दिए जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल अंधेर राज चल रहा है, एकदम अंधेर राज चल रहा है। और वो बच्चों का तो सुनने से अभी मना कर दिया है कोर्ट ने भी, क्योंकि उनको बाकी पता है कि बच्चों का बाकी है अभी देने का मतलब काफी हो रहा है, मगर तो जो बिल्कुल जरूरत है कि जिनका बाकी है उनका सुनो कि भी जरूरी है कि नहीं। क्या मैं और तुम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, वो नहीं पढ़ते हैं कि हमारी एनटीए जीआई ना बोल रही है कि बच्चों को जरूरत नहीं है। ये क्या चल रहा है? फिर मैं क्या डॉक्टर, अमेरिका में तो कम से कम ये सवाल उठ रहे हैं। अब वहाँ बाकायदा लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो गई है बहुत तेजी से। और कनाडा में अभी आपने वीडियो देखा होगा जहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसे वायरस कहना या इसे वैक्सीन या इस सब पर चर्चा करना भी अपराध है, क्योंकि ये तो बहुत ही मास जेनोसाइड का फुल प्रूफ प्लान है, जिसको उन्होंने कोरोबरेट किया है फैक्ट से कि जो डॉस्टेच है और जो इको हेल्थ अलायंस है, एनआईएच है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, सबका जो ट्रेल है वो पता चल गया है। और जो बायो यूपिन के जो लैब चल रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को पता चल गया है। ये इन्वेस्टिगेशन होना है, बावजूद इसके जो डावोस के जो दलाल जुटे हैं पूरी दुनिया में, वो अब इसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। प्रकाश पोहरे जी के साथ कोई बानखेड़ी साहब हैं, मुझे नहीं मालूम है बानखेड़ी साहब, आप अपना एक तो परिचय बताइए बानखेड़ी साहब। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप प्रकाश जी के साथ हैं, तो अभी प्रकाश जी ने कहा कि अब एक्चुअली में आजादी की दूसरी लड़ाई का वक्त आ गया है। और ये ट्रूली आजादी की दूसरी लड़ाई है। हमने अभी एक दिन पहले प्रोफेसर संजीव शर्मा के साथ शो किया था, जिसमें हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और दुनिया के सुपर एलीट फ्रॉम ब्रिटेन टू अमेरिका, फ्रॉम जर्मनी टू फ्रांस, फ्रॉम पुर्तगाल टू स्पेन एंड टू इंडिया, इस सबको एक्सपोज किया कि कैसे मुट्ठी भर सुपर एलीट इस पूरे तंत्र को अपने कब्जे में कर लिया है और वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और टू सम एक्सटेंट जुडिशरी, ये सब मुझे अब पपेट दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो डीप स्टेट है वो डीप स्टेट तो वो है। तो क्या मैं भारत की बात इसलिए कह रहा हूं कि पूरा यूरोप, पूरा इंग्लैंड, अमेरिका सबको जोड़ ले तो भी 80 करोड़ की आबादी नहीं क्रॉस कर पा रही है, और हम तो 130-40 करोड़ की आबादी है। तो क्या भारत को अब टोटल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहिए? क्योंकि हमने इतने वर्षों में ना तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, हमने अपने आईआईटीएंस को यहां पढ़ाया लिखाया, बाहर भेज दिया उनकी गुलामी करने के लिए, वो नौकरी कर रहे हैं, कुछ डॉलर्स उन्हें मिल रहे हैं, उस पे वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर वीणा राघव ने कहा कि 1976 के बैच में 160 डॉक्टर पास आउट हुए, जिसमें से 131 डॉक्टर अमेरिका में बस गए हैं। आज 29 डॉक्टर उनके बैच के इंडिया में हैं, और आज वो सभी दे आर ऑल लीडिंग अमेरिकन हेल्थ केयर इन अमेरिका। तो बानखेड़े साहब ये बताएंगे आप कि अब टोटल फ्रीडम की तरफ भारत को बढ़ना चाहिए? बेसिकली मैं ये सब सुन रहा था या जो भी हो रहा है, बेसिकली दिस इज अ न्यू डोमेन एक्चुअली क्रिएटिंग द बिजनेस। इसको मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। बिजनेस कहाँ से आता है? फियर से आता है। There is no domains which we are creating the fears within our society, so they compelled by any means, even though basically if अभी बहुत अच्छा एक पॉइंट हुआ है कि ऑलरेडी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी पांचवा जो भी ओमिक्रॉन आया है वो भी चला गया है। तो 18 इयर्स के ऑलरेडी पहले डिसाइड हुआ था कि 45 ईयर के पहले से ज्यादा लोगों को देना चाहिए, वो दे आर इन डेंजर है। तो बाकी के जो 18 साल के उम्र के नीचे है या 18 साल के ऑलमोस्ट 18 इयर्स है या 14 इयर्स है, तो वो इन डेंजर नहीं थे क्या? अभी उनका इम्यूनिटी पावर एक ऐसे उन्होंने जज कर लिया। वो मैं एक्चुअली 2020 की बात कर रहा थी कि किस तरीके से वो मैकेनिज्म इन प्लेस हुआ। ऐसा नहीं है, जैसे जैसे वैक्सीन आ रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट वैक्सीन अबाउट इंडिया ओनली।
ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये भी लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से एक वुहान से कहीं निकला था, ये जो वायरस जो निकला था, अभी वो उसका 3रा साल चल रहा है, ऑलमोस्ट 13 years, राइट? सॉरी 3 years. What actually I am trying to say over here, actually creating the fears in the society to dominate and to rule any mean. सोसाइटी को रूल कैसे करेंगे आप एक पॉइंट पे? इसको सोशियो पॉलिटिकली भी, मैं अगर मुझे आप पूछ रहे तो मैं इसको सोशियो पॉलिटिकल एक एस्पेक्ट देखता हूँ, एक डायमेंशन है विच एक्चुअली क्रिएटिंग द फियर विद इन द सोसाइटी। एंड उसको कितना तक लेकर जाओगे आप? अभी सवाल मेरा यही है, आपसे भी है और पूरा सबसे यही है कि ठीक है ना, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, हाउ इट्स रिपीटेडली गोइंग? तभी तो मैं कह रहा हूं, अभी बहुत सारे लोगों को ये हाँ। सवाल उठ रहा होगा मन में कि भाई मैं किसी जज के बारे में इतनी कड़ी टिप्पणी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं पूरे होशो हवास में कर रहा हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा लॉलेस हो गया है मामला। अब आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी हियरिंग के लिए जाता हो तो कोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख का फाइन लगा दिया। मानखेड़े साहब, कल्पना कर सकते हैं? बोला कि मैं इस पर कोई सुनूंगा नहीं। वो कह रहा है कि भाई देखिए, ये जो इस तरह से जबरदस्ती हमको वैक्सीन दे रहा है, इसका लाभ हमको खाली बता दीजिए। सुनने में क्या जाता है, न्याय का मंदिर है, न्याय के लिए कोई आदमी जा रहा है, हो सकता है वो पागल हो सकता है वो दीवाना आदमी हो, उसको कोई समझदारी नहीं हो सकता है, फिर भी आप उनको फाइन लगा देंगे 2 लाख रुपए का, समय बर्बाद करने के चक्कर में। समय बर्बाद करने के लिए करोड़ों मामले पड़े हुए हैं, और समय कैसे बर्बाद किया जाता है ये जुडिशरी के किसी भी, आप लोअर कोर्ट में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है एक डेमोक्रेसी में, अब तो मुझे लगता है कि कोई राजा ही आ जाए, उसी के माथात हम लोग चले जाएं। प्रकाश जी, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन इन सिस्टमैटिक वे से, दैट्स व्हाट आई वुड से। It is not a breakdown, it's a systematical way. मैंने एक पे 2 लाख का फाइन लगा दिया, बाकी को स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल गया, खत्म। हाँ, उसमें दूसरा ये भी बात देखनी पड़ेगी आशुतोष की। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट का डेटा कलेक्ट किया जाए। तो क्या कोर्ट ये बता सकेंगे, या गवर्नमेंट का कोई आदमी बता सकेगा कि इन्होंने इसके लिए क्या सिस्टम लगाई है, या वो चल रही कि नहीं है, वो उसके थ्रू कितने अभी तक के, अब ये जब से उन्होंने आदेश दिया तब से उनको आदेश आके 1 महीना हो गया है। हाँ, 1 महीने में उन्होंने कोई एडवर्स इवेंट रिपोर्ट किया है कि नहीं किया? हाँ, तो ये तो किया ही नहीं है डेफिनेटली। मैं तो अभी दावा उसके बारे में बोलने को तैयार हूं, क्योंकि इनके पास में कोई स्थिति, ये चाहते ही नहीं है। ऐसा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह छोटी बातें कुछ होगी ना तो उसके पीछे लग जाएंगे। ये एक छटाक पर कोई पुराना केस होगा, उसको लिया, वो जज का कोई अपमान हुआ होगा, क्योंकि इनके दिमाग में तो भूसे भरे हुए हैं। उसको ऐसा लगता है कि मास्क लगाओ। मैं आज ही ट्रेन में आ रहा था अकोला से नागपुर, तो आपको मैं बताता हूँ कि एकदम हाईली सोफिस्टिकेटेड और एजुकेटेड फैमिली, छोटे बच्चों, एक 7-8 लोग थे, शादी में कहीं जा रहे थे, तो एकदम छोटे बच्चे से, मुझे 7-8 साल के बच्चे थे, उनके मुंह को भी लंबे चौड़े मास्क लगाया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको बोला उसके बारे में, तो वो बोले नहीं, आपको मालूम नहीं है, हमारे गांव के अंदर तो बहुत लोग मरे। मैंने बोले मरे तो नहीं है, लेकिन मारे जरूर होती है। तो उनको पूरा मैंने समझाने के बाद में भी वो दिमाग में से भूसा निकलने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए ना, ऐसा है कि अगर आप एक ही बात, अगर 100 झूठ, अगर झूठ को 100 बार कहा जाए तो लोग जिस तरीके से सत्य मानना चालू कर दे, उसी तरीके से आपने देखा ना कि ये फोन उठाए तो सुनना है, टीवी चालू करे तो सुनना है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी है तो सुनना है, रास्ते से जाओ तो भी आपको बिना मास्क नहीं प्रवेश। और ये तो क्या हुआ कि ये साइको फियर जो इन्होंने जिस तरीके से बनाया, और लोगों को ये जो माइंड कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं ना, एक जमाने में जिस तरीके से पूरे भारत भर में अपने गणेश दूध पी रहे थे, इसी तरीके से तो इन्होंने तो क्या, ये 2 साल 3 साल का ये इस तरीके से एक ट्रायल करा दिया है। और कल प्राध्यापक जो प्रोफेसर संजू शर्मा जो थे, इन्होंने जो बोला है, इसके बाद में तो अभी मैं तो ऐसा समझता हूं कि अभी कुछ चीजें बची नहीं है इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, या कोई कंफ्यूजन नहीं,
मेरे दिमाग में अभी कोई कंफ्यूजन बचा नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तो ये आपने जैसा बोला ना, ये डावोस के कुछ नालायक और हरामी जो दलाल है, उन दलालों का ये षड्यंत्र है। और आप तो, और उसके अंदर तो उन्होंने आखिरी में बोला ही है कि इस तरीके से इनके सबके जो मुखिया है, अभी वो खुद को और उनके जो अंधभक्त है वो अब डिक्लेयर कर देंगे कि क्या बोलेंगे, विश्व गुरु भारत, और हमारे मोदी जी विश्व गुरु। देखो कितना है भारत की क्या चमत्कार। अब डॉक्टर माया और प्रकाश जी, अब जरा वो जस्टिस साहब को बोलिए, आप जस्टिस साहब को बोलिए कि इनके वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। मुंबई में बढ़ रहा है, केरल में बढ़ रहा है, ये मीडिया प्लांट कर रही है। तो इनको पूछा जाए कि तुम्हारी एफिकेसी क्या है, और अब इससे बचने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है कि हमने तो कहा था कि प्रिकॉशनरी डोज लेना पड़ेगा। ये कितने बूस्टर डोज लगाएंगे? हाउ मेनी बूस्टर डोज यू नीड एक्चुअली डॉक्टर माया फॉर वन इन्फेक्शन? अब इनका म्यूटेंट देखिए, वुहान वेरिएंट आया, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आके चला गया, अब ये मंकी पॉक्स का नाटक शुरू कर दिया है। अब इनको कितने और वेरिएंट चाहिए? एंड द सेम वैक्सीन इज एप्लीकेबल टू ऑल द वेरिएंट। सीरो सर्वे कह रहा है कि नेचुरल इम्यूनिटी आ गई, हर्ड इम्यूनिटी अक्रॉस द कम्युनिटी आ गई। इन्हीं का सीरो सर्वे कह रहा है, मेरा नहीं। हर्ड इम्यूनिटी आ गई, नेचुरल इम्यूनिटी आ गई, उसके बाद भी इंफेक्शन हो रहा है। तो ये इंफेक्शन किसका है? इज इट वैक्सीन जनरेटेड इंफेक्शन? इज दिस द इंफेक्शन ऑफ वैक्सीन? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को उन्होंने कमजोर कर दिया। डॉक्टर माया, सच ये है कि आपका ये जो सबसे पहला आरटीपीसीआर टेस्ट है ना, वही विश्वसनीय नहीं है। हाँ, अब फिर से ट्रैकिंग शुरू हो गया आरटीपीसीआर का। सो एक पहला पॉइंट ये है कि आप किसी भी, आपको पेट में दर्द है, कुछ भी, हवा में वायरस है, अगर आप वायरस थियरी में, हवा में वायरस है, सबका जिसका टेस्ट करो उसमें, ये टेस्ट तो वायरस भी नहीं डिटेक्ट करता है। एक टुकड़ा, जो टुकड़ा वो भी मतलब वो कॉमन हो सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस को। इसलिए तो अभी कुछ महीनों, दिसंबर 21 से अमेरिका ने ये टेस्ट निकाल दिया और मल्टीप्लेक्स टेस्ट लाया, क्योंकि वो पुराना टेस्ट सभी चीजों में पॉजिटिव दिखा रहा था। अगर अमेरिका में वो टेस्ट सभी चीजें दिखा रहा तो हमारे देश में सिर्फ कोविड ही दिखा रहा था? नहीं, आप किसमें भी करो। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आप कुछ साइकिल से, ये सबसे पहले तो ये टेस्ट किट पर लिखा रहता है कि ये डायग्नोसिस के लिए टेस्ट है नहीं, ये सिर्फ रिसर्च के लिए टेस्ट है। दूसरी बात कि आप अभी भी लिखा हुआ है टेस्ट किट पे, क्या उस टेस्ट किट पे अभी भी लिखा हुआ है दिस इज फॉर रिसर्च, दिस इज नॉट फॉर डायग्नोसिस? और ये फुल्ली अप्रूव्ड टेस्ट नहीं है। ये भी जैसे हमारे तरह इमरजेंसी, उसका तो डेथ ही हो गया बेचारे का, क्या कीजिएगा। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की दवा, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का टेस्ट और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जहां की कोई इमरजेंसी नहीं है उसमें खड़ी करो, दिखाओ आप मीडिया में। और इमरजेंसी जो नहीं भी है तो भी बच्चों को ये शायद हो जाएगा कर करके वैक्सीन चला रहे हैं। अब इनसे कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है डॉक्टर माया कि थर्ड वेव, इन्होंने पेडियाट्रिक वेव डिक्लेयर किया था, इनका मैथमेटिकल मॉड्यूल बोला था कि थर्ड वेव जो आएगा कानपुर का, और यहाँ जो दिल्ली में दलाल बैठा हुआ है वो सो कॉल्ड मेरा ही मित्र था एक जमाने में, लेकिन आजकल 600-700 बेड का हॉस्पिटल चला रहा है। अब बहुत पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद माधुरी दीक्षित के साथ फोटो खिंचवा लिया। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया शायद उसमें, और ये सब एडिटोरियल बोल रहे हैं ना कि ओमिक्रॉन के कारण लास्ट क्वार्टर का इकोनॉमी खराब हुआ। अब ओमिक्रॉन को हमको तुमको सबका पता है, ओमिक्रॉन से कुछ हुआ नहीं है, मगर इकोनॉमी पर असर आ गया। पहले इंसानों पर असर करता था, अब इकोनॉमी अगर खराब जा रही है तो ओमिक्रॉन को बोल दिया कि ओमिक्रॉन के कारण लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर का इकोनॉमी खराब हो गया। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यह पहली महामारी है जिसमें बिल्ली तक को भी परेशान नहीं किया, आदमी को छोड़ करके। तो अच्छा, फिर ये साइकिल का, फिर 1 साल के बाद WHO ने बोल दिया कि भाई आप जरा साइकिल संभाल के देखा। अब WHO जैसी संस्था बोल नहीं रही है कि कितनी साइकिल पर कितनी एफिकेसी है,
बहुत ज्यादा साइकिल हो तो उसको मत मानो, एसिम्टोमेटिक में आप फिर से रिपीट करो। ये सब कौन अपने देश में एसिम्टोमेटिक को पॉजिटिव आया तो उसको रिपीट करते हैं क्या देखने के लिए? नहीं, डॉक्टर माया, डॉक्टर सुजन, दोनों बोलिए। जब अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया आरटीपीसीआर टेस्ट को कंप्लीटली और एक प्रकार से सीडीसी ने डिक्लेयर कर दिया कि बहुत सारे इसमें फ्लॉ हैं, हम इसको रामबाण नहीं मान सकते हैं, इस टेस्ट को आधार नहीं बना सकते हैं, ये भारत में कौन चला रहा है? ये राजेश भूषण जो है, ये कहां से पढ़ाई लिखाई किया है? ये जो हेल्थ सेक्रेटरी है राजेश क्योंकि कोई भूषण, पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिस्टम पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमें अब और कोई नहीं, वैक्सीन में क्या है, वैक्सीन से पहले सिस्टम पर कंट्रोल मांगना है कि हमारा लोगों का कंट्रोल चाहिए सिस्टम में। जिस दिन आज मैं और तुम आप सवाल करते रहे तो जवाब कोई दे नहीं रहा है, अपनी चला रहे हैं। अभी बॉम्बे में बोल रहे हैं टेस्ट 100% बढ़ गए। अरे 100%, अब 1 में से 2 हो गए तो 100% ही बढ़ेंगे ना। इतने बड़े पॉपुलेशन में 700 केस, कोई केस होता है? प्रकाश पोहरे जी, प्रकाश पोहरे, बानखेड़े जी, डॉक्टर सुजन, डॉक्टर माया ने कहा कि आप कुछ भी बोलते रहिए, अपना तो करना पड़ेगा नियंत्रण। तो प्रकाश पोहरे जी ये, और डॉक्टर बानखेड़े साहब आपकी तरफ ये उनका क्वेश्चन है कि आपको सिस्टम को ठीक करने के लिए सिस्टम कंट्रोल करना पड़ेगा, सिस्टम कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल पाथ लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल पाथ लेने के लिए आपको एक्टिविज्म का पाथ लेना होगा, एक्टिविज्म के पाथ लेने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो क्या सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं बानखेड़े साहब और डॉक्टर सुजन? बिल्कुल बिल्कुल, सड़क पे उतरने के लिए तैयार हैं, उतरे भी हैं। और अपन लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है वो सिर्फ अपने लिए नहीं ली है, हमने जो जिम्मेदारी ली है सबों के लिए, सबों के बहुतों के फायदे के लिए ली है। ये तो जरूरी है। और इसके साथ साथ में मैं हमेशा कहती हूँ, एक आंदोलन होता है, एक अवरोहित आंदोलन होता है, दोनों का समानांतर तरीके से तैयारी चालू रहनी चाहिए। तो जहां एक तरफ सड़क पे उतरना है, आंदोलित आंदोलन है, और जहां आप एविडेंसेस निकाल रहे हो, आप उसके पीछे की पूरी छानबीन करके सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहे हो, वो अवरोहित आंदोलन है। तो दोनों की जरूरत है। और हमें हर एक जो नरेटिव्स आ रहे हैं उन नरेटिव्स का खंडन करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी शुरू हो गया है नरेटिव कि किसी का मतलब, हमारे जो मेडिकल डॉक्टर्स है वही बड़े अजीब नरेटिव दे रहे हैं, जबकि वो के गायक जो है उनका पोस्टमार्टम में उनको अजीब दिखाई दिया, नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं दिखाई दिया, उसके कई वेन आर्टरीज में ब्लॉकेज दिखाई दिया अलग अलग जगह पे। इसमें सीधे उनके दिमाग में ठनकना चाहिए कि इसका डी डाइमर हाई था, यदि उसको पहले से टेस्ट किए होते तो ये आदमी को बचाया जा सकता था, और इसका कनेक्शन वैक्सीन से होनी चाहिए। ये जो चीज को बजाय वो लोग बोले कि वो गाना गाते समय एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया था। अरे नाच गाना, कहते हैं डांस, और तुम्हारे जो खेल कूद एडवेंचर, वो एक्साइटमेंट के लिए तो करते हैं। हाँ, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगा तो वो किस काहे के लिए करेंगे अपन उसको? एक्साइटमेंट के बिना अब आप जिम करो, आप ज्यादा हिले बिना जिम करो, ब्लॉक हो जाता है क्या? नहीं, आप ये एक्साइटमेंट में ब्लड ब्लॉक हो जाता है? बिल्कुल नहीं, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, अच्छा से होता है। बल्कि उन्होंने पोस्टमार्टम में दूसरी ब्लड वेसल्स में भी क्लॉट्स की शुरुआत है, कहीं और जगह है कि नहीं, वह देखा कि नहीं, या तो जरूर से बताया क्यों नहीं कि दूसरी कोई जगह पे थे या नहीं। अगर नेगेटिव भी बताओ कि हार्ट के सिवा और कहीं नहीं था, हार्ट के सिवा दूसरी जगह पे भी कुछ थोड़े थोड़े भी क्लॉट्स थे, इसका मतलब 100% इट वाज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। तो ये फाइंडिंग दिखाना चाहिए ना, नेगेटिव हो के बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए। और उसमें मतलब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में लिख के आ गया है कि एक जगह नहीं कई जगह के आर्टरीज उसके ब्लॉक हुए हैं, और ऐसा कार्डियक अरेस्ट में थोड़ी होता है, ये सिंपल चीज नहीं है। तो आप क्यों उसके ऊपर वैक्सीन की बात नहीं करते हैं? ये जो नैरेटिव है उसको खंडन करना जरूरी है, और ये साथ में चलना चाहिए। ये भी एक आंदोलन है। सब गलत गलत रिपोर्ट, अब आप कहते बिना एक्साइटमेंट के नाचो, अब बिना एक्साइटमेंट गाना गाओ, ये कोई सोल्यूशन हुआ क्या? हाँ, तो ये गलत सोल्यूशन देते हैं ये लोग, और ये हमारे डॉक्टर लोग दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जितने वैक्सीनेटेड है सब लोगों के टेस्ट करो ना, टाइमर के टेस्ट करो, हिमेटोग्राम कीजिए, उनका लिवर फंक्शन टेस्ट कीजिए, और पहले से पता हो जाएगा भाई कि इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डेवलप होने वाला है या इसको कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। मीडिया कितनी फ्रॉड होती है, मैं आपको उसकी एक रिपोर्टिंग का
एक उदाहरण देता हूं कि केके के डेथ के बाद तक चैनल पे लोअर टिकर चल रहा था कि केके के माथे पर चोट का राज। अरे भाई वो तो बेहोश होके गिर गया कहीं पे तो उसको चोट लगना ही है। अब कह रहा है कि केके के माथे पर चोट का राज, उसको ट्विस्ट देना चाह रहा था, कहीं और ट्विस्ट दे रहा था कि किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कौन सा एंगल है, इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दीजिए। ये कहानी शुरू हो गई थी, लेकिन वो सब बात निकली नहीं। असली कहानी पर उनकी नजर नहीं है। असली जो बात है कि इसका इस पर इम्पैक्ट हो सकता है, उस इम्पैक्ट की चर्चा ही नहीं कर रहा है, ना करना ही देना चाहता है। उस नैरेटिव को ही अंडर द कारपेट डाल देना चाहता है। जी जी। बानखेड़े साहब, आप क्लोजिंग रिमार्क दीजिए कि सड़क पर उतरने के लिए हमारा जनमानस तैयार है या उसी माइंड सेट से चलता रहेगा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशुतोष जी, अनादिकाल से यानी पुराने अपना जमाने से कभी भी एक सोच किंवा एक उसको हम जिसके थॉट प्रोसेस बोलते हैं वो कभी भी नहीं रहते। There are always number of thought processes going on the same time and simultaneously. So ऐसा नहीं है कि आज भी एक प्रकार का, अभी सुजैन मैम ने कहा कि एक साइलेंट आंदोलन चल ही रहा है ना, तो ऐसा नहीं है। जिसका इसके सवाल इसके जवाब देने पड़ेंगे, सिर्फ उसकी लिमिट कब है। आज जो हो रहा, मैं अभी पहले बोला था कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो उसका कहीं तो एंड होगा ना। ऐसा नहीं है कि आप बनाते रहोगे और फिर 10-25 साल 50 साल ये चलता रहेगा, कहीं तो उसका काउंटर होगा। और फिर वो रिसीविंग, आज जैसे आप बोल रहे कि हम रिसीविंग पे है, तो एंड ऑफ द डे वो भी रिसीविंग पे आएंगे, तो उसके लिए होगा ही। तो या तो उसका सिर्फ इतना ही एक पार्ट है कि उसके लिए जन आंदोलन किस तरीके से होगा वो आने वाला भविष्य बताएगा। अभी वो भी नैरेटिव चला गया कि पहले के जमाने में लोग इस पे आता, मैं सोशल मीडिया में हूं तो मैं बोला कि सोशल मीडिया पे आएगा, उसके लिए सड़क पे आने की क्या जरूरत है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ एक्चुअली, है ना। बट द पॉइंट इज दैट कि काउंटर होगा और होना चालू हो गया है। इनको अभी जवाबदेही बन रही है, इनकी जवाबदेही बन रही है इनकी। वेरी गुड। तो हम आपको ये बताते हैं, आशुतोष जी, मैं ये सिर्फ इतना, ये आपके शो के माध्यम से मैं सिर्फ जो अकल के अंधे लोग हैं उन लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी इसके आगे जो भी डेथ होगी, पहले तो ये देखो कि वो आदमी वैक्सीनेटेड है या नहीं है। अगर वो आदमी वैक्सीनेटेड है तो मैं हाथ जोड़कर उन लोगों को विनती करना चाहूंगा कि पहले उसका पीएम करवाइए, पोस्टमार्टम करे सिवा मत रहो, और ये इसका पूरा का पूरा रिपोर्टिंग होना चाहिए, तो जाकर ये सारी चीजें जो है खुलेगी और उसके बाद में लोगों में कुछ तो अकल आएगी या लोगों की कुछ ना कुछ आंखें खुलेंगी। इतना ही मैं आज के आपके शो के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूंगा। एक तो आप सबको शुभकामना देने के पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अब अस्तित्व में है, उसका पहला अधिवेशन बेंगलोर में, दूसरा मुंबई में, तीसरा पटना में, चौथा नागपुर में और फिर पांचवा मुंबई में और फिर छठा आज हैदराबाद में हो रहा है। और हम लोग शहर शहर जाकर के हमारे डॉक्टर्स की टीम लोगों को फिजिकली भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और साइंटिफिक डेटा हम उनको दे रहे हैं। अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे UHO.org.in पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो कोविड और कोविड-19 और वैक्सीन और दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी मुहैया कराएगी। हम अपने जज साहब से ये अनुरोध करते हैं कि जज साहब, आपने जो निर्णय दिया है उस पर खुद ही आप एक बार विचार कीजिए। ये जनतंत्र है, वरना लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। इस तरह का आप निर्णय मत दीजिए। अकेले अगर आपको गुस्सा आ जाए तो अपने गुस्से को नियंत्रण में रख करके कोई लॉजिकल निर्णय दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है और मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब से, फेसबुक से, बाकी चीजों से हमारी लड़ाई चल रही है। हम अपने नेटवर्क के साथ भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और तब तक के लिए हमें अनुमति भी दीजिए। डॉक्टर माया, डॉक्टर सुजन, प्रकाश कोहरे जी और बानखेड़े जी और हैदराबाद से सक्सेना, डॉक्टर सक्सेना, प्रोफेसर भास्कर,
प्रोफेसर प्रवीण सक्सेना, नीलेश ओझा जो संबोधित कर रहे थे मुंबई से, बाकी जो जितने वहां डेलीगेट्स हैं उन सबका भी हम आभार प्रकट करते हैं। और कल 7:30 बजे संभवतः आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर वक्त रहा तो। कल थोड़ी व्यस्तता है, बावजूद इसके हमारी आपसे मुलाकात हो सकती है कल 7:30 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।